Scoring high in the commerce optional requires three things. Number one, latest material. Number two, previous year question coverage. And number three, right practice of the answer writing. Our classroom course of commerce has all these three things. Hello, my name is C. Rahul Kumar. Come and join us. Hi everyone, I'm Ritika. I've secured All India Rank 88 in Civil Services Examination 2018. My optional was Commerce and Accountancy. So in this video, I'm going to discuss about my strategy for Commerce and Accountancy. I have secured 330 marks out of 500 in Commerce and Accountancy paper. This is one of the highest in this year's paper. Also, as per the information that I have, after the pattern has changed, it's one of the highest. Now talking about the pattern of papers, the subjects which are there. This is for the beginners, those who are already preparing or maybe they have the first attempt or second attempt, they can skip this small part. For the beginners, the paper has 8 questions. So in that, first and fifth question is compulsory. So there are 2 sets, 4 questions in each set. First and fifth is compulsory. In each set, we have to choose at least 1 question, and so choose the 5th question in any other set. In total, we have to attempt only 5 questions out of those 8. This I am telling because अपने मेंस के एग्ज़ाम्स के दौरान आई हैड मेट अ पर्सन जिन्होंने फर्स्ट सेट में से ही पाँचों के पाँचों क्वेश्चंस कर दिए थे एंड दे वर नॉट एबल टू क्लियर द मेंस. सो प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. So that was the general advisory to all. Now talking about the composition of paper 1 and paper 2. So optional paper 1, it's generally practical oriented. It has financial accounting, income tax, financial management, cost accounting, and audit and financial services. These are the major subjects which are covered under paper 1. So in paper 2, we have 4 subjects. First is organization theory, second organization behavior, third human resource management, and fourth is industrial relations. In GS paper 2, we have international relations. So here we also call it IR, but this is industrial relations in commerce paper 2. Now talking about the book list. As I've told you, I already had a stronghold. So I used to refer to my 11th and 12th class books for the basics and my graduation books because those were the books that I had read at least 4-5 times. So अगर मैं उनको अच्छे से दोबारा रेफ़र करती, so it was easier for me to recall things rather than going for a new source. Another thing is that I had referred to Ranker's classes notes for that commerce paper. Now paper 1 strategy. पेपर 1 की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं, जो कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है. सो इट्स लाइक मैथमेटिक्स, जहाँ आपको न्यूमेरिकल्स भी दिए जाते हैं. देयर आर थ्योरी क्वेश्चंस एज वेल. देयर इज अ सर्टेन रेशियो ऑफ प्रैक्टिकल एंड थ्योरी विच कम्स इन पेपर 1 विच कीप्स ऑन वेरिंग एवरी ईयर, सो देयर कैन नॉट बी अ सेट पैटर्न. सो यू शुड प्रिपेयर बोथ फॉर प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी फॉर पेपर 1. A little tip that I would like to give you for more marks is try to attempt practical questions if you are well versed with that, because theory में there's a scope of subjectivity, तो उसमें marks कटने का chance होता है. But in practical, if you are very well versed with the formula, your steps are correct, your final answer is correct, you're bound to get more marks. There is very less scope for subjectivity in that. For that, so that आप प्रैक्टिकल पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ, उसके लिए एक प्री रिक्विजिट चीज़ है, और वो क्या है कि आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए. योर कॉन्सेप्ट्स शुड बी वेरी क्लियर, ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग. सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से आने चाहिए. अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो और वो अच्छे से याद हो. समझ तो लिए, बट उनको आप अच्छे से याद भी करेंगे, मेमोराइज़ करेंगे, आपको रिवाइज़ करना है. और इन सब चीज़ों के
साथ साथ यू नीड प्रैक्टिस इज़ मस्ट, बिकॉज वो प्रैक्टिकल है, आपने समझ लिया कर लिया, बट जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना आपकी स्पीड बनेगी तब तक ना आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। उसके लिए आप टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं और ख़ुद भी आराम से बैठ के एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक्स के, बिकॉज दैट इज़ ऑलरेडी सॉल्व्ड वन। तो आपको इजीली अवेलेबल उसके आंसर्स भी मिल जाएंगे अगर आपकी ग्रेजुएशन की टेक्स्ट बुक्स हैं तो प्रैक्टिस इज़ द की, एज वी से प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सो डू प्रैक्टिस अ लॉट फॉर स्पीड, बिकॉज 3 घंटे में आपको वो पूरा पेपर कंप्लीट करना है, पेपर 1 का, एंड देयर आर लॉट ऑफ बिग न्यूमेरिकल्स। ऑल्सो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, कई बार ना पेपर में स्पेस कंस्ट्रेंट हो जाती है, स्पेशली इन द क्वेश्चंस ऑफ फाइनल अकाउंट्स, जहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बनानी है, बैलेंस शीट स्टेटमेंट भी बनानी है, साथ में नोट्स टू अकाउंट्स भी होते हैं, वर्किंग स्टेटमेंट्स भी होती हैं। सो एक बार पीछे पेज पलट के ज़रूर देख लेना कि कितनी स्पेस मिली है आपको, उस हिसाब से आप क्वेश्चन उसको लिखना स्टार्ट कीजिएगा। न्यूमेरिकल्स में कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में हो जाता है, अदरवाइज यूपीएससी गिव्स एडिक्वेट स्पेस फॉर एवरी क्वेश्चन। दैट इज़ फॉर पेपर 1। और पेपर 1 में अगर आप देखें फाइनेंशियल सर्विसेज, जो मैंने आपको सब्जेक्ट बोला था, इट हैज़ सर्टन कन्वर्जेंस विद जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स। जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, आरबीआई ने, सेबी ने कुछ डिसीजंस लिए या फाइनेंस मिनिस्ट्री के कुछ डिसीजंस हैं, सो यू कैन यूज़ दैट करंट अफेयर्स नॉलेज इन फाइनेंशियल सर्विसेज सब्जेक्ट। ऑल्सो ऑडिट में भी आप कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं कि बैंकिंग में जैसे एनपीएस राइज कर गए थे, वी हैव, तो आईसीएआई का न्यू इनिशिएटिव्स आ सकते हैं, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी सेटअप हुई थी उसके बारे में आ सकता है, एनसीएलटी एनसीएलएटी के बारे में आ सकता है। सो यू शुड बी वेल वर्स्ड विद ऑल दीज। सो देयर इज़ सर्टन कन्वर्जेंस। जनरली लोग कहते हैं कि कॉमर्स का कोई कन्वर्जेंस है ही नहीं करंट अफेयर्स के साथ या फिर जीएस के साथ। सो दीज आर सर्टन एरियाज़ जहाँ पे आपको कन्वर्जेंस मिलेगा। इवन इन इनकम टैक्स में बजट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एज फार एज इनकम टैक्स इज़ कंसर्न्ड, बिकॉज अच्छा, जब आप इनकम टैक्स का पेपर लिख रहे हैं एज फार एज यूपीएससी इज़ कंसर्न्ड, तो आपको एक रेवेन्यू ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सो फॉर एग्जांपल अगर हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, या एग्जेम्पशंस की बात कर रहे हैं, वो डिडक्शंस की बात कर रहे हैं, एटीसी की बात कर रहे हैं, सो यू हैव टू फाइंड द रैशनल बिहाइंड दैट। वो ग्रेजुएशन वाला सोच नहीं चलेगा उसमें कि ग्रेजुएशन में आप सोचते थे कि ठीक है आपने कुछ पॉइंटर्स लिख दिए कि क्या क्या उस डिडक्शन में या एग्जेम्पशन में आ रहा है। हियर यू हैव टू राइट रैशनल एज वेल। दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन योर ग्रेजुएशन आंसर्स एंड द आंसर्स दैट यू राइट इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सो कीप दैट इन माइंड दैट हियर एनालिसिस ऑफ दोज फैक्ट्स मैटर्स अ लॉट। अगर आपने बैलेंस शीट बनाई, आपने रेशो एनालिसिस किया, कैश फ्लो बनाई, एनालिसिस वुड मैटर, तो एनालिसिस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। सो दैट वाज अ ब्रॉड स्ट्रैटेजी अबाउट पेपर 1। नाउ विल कम टू पेपर 2। पेपर 2 में जैसा कि मैंने बोला, थ्योरी है, एचआरएम है, ओबी, ओटी एंड आईआर, 4 सब्जेक्ट्स आर देयर। तो उसमें हमारा करंट अफेयर्स के साथ काफ़ी कन्वर्जेंस बैठ जाता है, इकोनॉमिक्स के साथ कन्वर्जेंस आएगा। जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशंस की हमने बात की, अब करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा देयर आर 4 कोड्स कमिंग अप, मिनिमम वेजेस का, सोशल सिक्योरिटी का, हेल्थ कंडीशंस का एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस का। सो देयर इज़ अ कन्वर्जेंस ऑफ करंट अफेयर्स विद इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ऑल्सो इवन एचआरएम, अगर आप जैसे न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, उसमें आता है कि बिग कॉर्पोरेट्स उन्होंने कुछ पॉलिसी चेंज की है, या फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कोई पॉलिसी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने न्यू पॉलिसी लाई है। सो इवन गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट, इवन पीएसयूज़ को आप स्टडी कर सकते हैं, उनकी केस स्टडीज़ की, उनकी गुड एग्जाम्पल्स आप यू कैन ऑलवेज कोट। इट्स ऑलवेज वेलकम that you quote certain examples and case studies. So वो करेंगे, that would enrich your answer. Also since ये theories हैं, in OB and OT you'll find leadership theories, motivation theories, so you should be well versed with those theories. आपको उनके positives, negatives, उनका evolution सारा पता होना चाहिए, उसका criticism, और फिर a balanced view overall for that theory. And end your question with a way forward, with a conclusion, with a balanced view, something that can take that answer, take that theory forward. So that would be a broad holistic view of answer writing as far as paper 2 is concerned. So in this video I had discussed why I had taken commerce and accountancy. Second was the paper pattern. Third was the syllabus of the paper. Fourth was the book list, and fifth was the strategy of attempting that paper. Hope that this video helps you. Thanks a lot. नमस्कार, मेरा नाम विशाखा जैन है।
सिविल सेवा परीक्षा 2019 में मैंने 101 रैंक हासिल किया है। सबसे पहले तो मुझे ये बताना है कि अगर आप ये ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखें, क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा कि एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल आज मैं सीए प्रोफेशन से हूँ, तो सीए फाइनल में जो क्वेश्चन पेपर आते थे या आईपीसीसी में जो पेपर आते थे वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होते थे, पर यूपीएससी के सवाल इतने डिफ़िकल्ट नहीं होते। तो इसीलिए क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है और हम हर चीज़ डेप्थ में नहीं कवर कर सकते, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम एक बार क्वेश्चन पेपर देखें, सिलेबस के हिसाब समक्ष उसको रख कर समझ में आए हमें कि कौन से सिलेबस के कौन से पॉइंटर को कितने डीपली हमें पढ़ना है, कितने अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करना है और किसके वेटेज ज़्यादा है। सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आप प्रेपरेशन कर रहे हैं और जब आपको समझ में आ गया कि किस चीज़ में मुझे कितना टाइम इन्वेस्ट करना है और कितने डीपली पढ़ना है, उसके बाद अपने रिसोर्सेज को फाइनलाइज करें एंड प्लीज़ स्टिक टू योर रिसोर्सेज। मैंने जो रिसोर्सेज रेफ़र किए मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो पेपर वन में मैंने अकाउंट्स के लिए रेफ़र किया था बीके गोयल की बुक, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की बुक है ग्रेजुएशन लेवल की, और मैंने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों उसी बुक से किया। लेकिन यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि हमें सिलेबस के पॉइंटर्स को स्टिक टू करना है और बुक के सारे चैप्टर्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना यूपीएससी के सिलेबस में है हमें उतना ही पढ़ना है। सेकेंडली अगर आप पेपर्स देखेंगे प्रीवियस ईयर के, तो अकाउंट्स में जो थियोरी के क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आते हैं। तो एक बार अगर आपने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कर ली अकाउंट्स के सारे टॉपिक्स की, उसके बाद जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो स्पेशल अटेंशन आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को दें। साथ ही उसके 2-3 आंसर ज़रूर लिख के जाएँ या दिमाग में सोच कर जाएँ कि मुझे आंसर्स कैसे अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सोच लिया था कि मैं जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के आंसर अटेम्प्ट करूँगी तो मैं ये अप्रोच रखूँगी कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, फिर उसके बाद उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, फिर मेजरमेंट एंड रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या है, एंड इवेंचुअली उसका प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर कैसा होना चाहिए हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो इस तरह से आप हर टॉपिक के लिए सोच लें कि मुझे किस तरह से इसका आंसर राइटिंग करना है। सेकेंड हमारा आ जाएगा कॉस्टिंग। मैंने कॉस्टिंग के जो थ्योरी के नोट्स बनाए थे वो मैंने बनाए थे अपने सीए फाइनल की बुक से, लेकिन आप रैंकर्स एक कोचिंग क्लास है, आप उसकी बुक भी रेफ़र कर सकते हैं, उनके नोट्स भी अच्छे हैं। थर्ड हमारा हो गया ऑडिट से 10 से 20 मार्क के सवाल आते हैं, बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते। तो एक छोटी सी बुकलेट देते हैं रैंकर्स वाले, खाली आप उतना ही पढ़ के जाएँ, वो काफ़ी होगा। फिर आपका आएगा डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जिनका सीए बैकग्राउंड है उन्होंने बहुत डेप्थ में पढ़ा है डायरेक्ट टैक्स, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है इस एग्ज़ाम में। इस एग्ज़ाम में सैलरीज, इनकम फ्रॉम सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिडक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रैंकर्स ने काफ़ी अच्छी तरह से एकदम संक्षिप्त में उनके नोट्स बने हुए हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप उनके नोट्स और उनके ही क्वेश्चंस जो उन्होंने दिए हुए हैं प्रैक्टिकल, उन्हीं को प्रैक्टिस करें और बार बार प्रैक्टिस करें, तो उससे आपको होल्ड आ जाएगा डायरेक्ट टैक्स पे। इनडायरेक्ट टैक्स पे लगभग क्वेश्चंस नहीं आते, फिर भी अगर आपको एक बार पढ़ना है तो रैंकर्स के ही नोट्स आते हैं 10 पेजेस के, उससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। पेपर 1 में जो एक सेक्शन बी है दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, तो उसके भी लगभग 150 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसको काफ़ी डिटेल में करें, काफ़ी डेप्थ में उसको पढ़ाई करें। मैंने जो बुक रेफ़र की थी वो थी डॉक्टर आर.पी. रुस्तगी की, जो टैक्समैन पब्लिकेशन इशू करता है, और वो काफ़ी बेसिक से शुरू होती है वो बुक, और काफ़ी इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं उसमें जिससे समझने में आसानी होती है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एफएम के लिए वो बुक रेफ़र करें। फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत स्कैटर्ड है, उसमें आरबीआई भी है, सेबी भी है, शेयर मार्केट भी है, कैपिटल मार्केट भी है। तो आपको अगर उसकी पढ़ाई के लिए आई वुड सजेस्ट कि एक बार बेसिक ओवरव्यू के लिए आप एक बार रैंकर्स के नोट्स रेफ़र करें, और उसके बाद जिस टॉपिक में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है उसके लिए आप इंटरनेट पे रिसर्च करें। इससे आपको इवेंचुअली एक छोटा सा रीडिंग मटेरियल मिल जाएगा जिससे आप लगभग 50 मार्क के जो सवाल आएंगे थ्योरी के आप वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन ये आप इंटरनेट रिसर्च वाला पार्ट आप एंड के लिए रखें, उसको प्रायोरिटाइज ना करें क्योंकि उसमें बहुत टाइम जा सकता है। तो पहले एक बार जो आपका स्टैटिक पोर्शन है जैसे कि एफएम हो गया, अकाउंट्स हो गया, सेक्शन ए वाला पार्ट, वो सबको आप अच्छे से कवर कर लें। फिर मेरा आ गया पेपर 2।
पेपर 2 में मैंने सिंह एंड चावड़ा की बुक रेफ़र की थी, लेकिन उसके भी सारे चैप्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो टॉपिक हमारे सिलेबस के साथ जुड़ी हुई है, हमें खाली उतना ही करना है और उसके नोट्स बनाने हैं। जब आप नोट्स बनाएंगे तो उसमें आपको 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, दूसरा डायग्राम्स आप इनकलकेट करें, और तीसरा हो गया एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपको बुक्स में नहीं मिलेगी, आपको उसको गूगल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वर्क कल्चर पढ़ रहे हैं तो कोई ऐसी कंपनी के बारे में सोचिए जिसका वर्क कल्चर बहुत अच्छा है और आप उसको अपने नोट्स में इनकलकेट कर दीजिए, इनकॉर्पोरेट कर दीजिए, जैसे कि गूगल। सेकेंडली, सिंह एंड चावड़ा के अलावा जिन जिन टॉपिक्स मेरे सिलेबस से कवर नहीं हुए, जो सिंह एंड चावड़ा में नहीं थे, उसके लिए मैंने इंटरनेट का सहारा लिया। मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स देखे हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस देखे हैं, और उसके बाद उनमें छांटा कि कौन सा मेरे लिए ज़रूरी है, और मैंने उस हिसाब से उसके भी नोट्स प्रिपेयर कर लिए। जब हम नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो हमें नोट्स भी पॉइंटर वाइज ही प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जांपल, अगर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, नेचर एंड कॉन्सेप्ट है तो हमारे नोट का हेडिंग भी यही होना चाहिए, क्योंकि अगर हम चैप्टर वाइज नोट्स बनाएंगे तो शायद हम बुक कवर करेंगे, सिलेबस नहीं। तो इसलिए प्लीज़ आप सिलेबस मतलब ट्राई टू स्टिक टू द सिलेबस, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, इधर उधर नहीं जा पाएँ और हम तो एकदम डायरेक्शन वाली पढ़ाई कर पाएँ। फिर आएगा इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन से मैंने रैंकर्स के नोट्स पढ़े थे, वो काफ़ी अच्छे हैं। खाली आप उसमें खुद के एग्जाम्पल्स इनकॉर्पोरेट करने का ट्राई करिए, जहाँ पे फ्लो चार्ट बन सके, डायग्राम्स बन सके, उन्हें करिए। स्पेसिफिसिटी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट फॉर एग्जांपल, तो आप ईयर का नाम लिखिए 1947, डेफिनेशन के 2-3 सेक्शंस रट लीजिए, क्योंकि इनसे ये होता है कि एग्जामिनर को लगता है आपने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाई की है, जिस वजह से आपका पेपर बाकियों के पेपर से बेटर होगा। फिर आएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पर्सनली मुझे ये एरिया थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता था, क्योंकि इसे पढ़ पाना बहुत मुश्किल है, अदरवाइज़ इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, पर मैं किसी तरह से ये सब्जेक्ट उठा नहीं पाती थी। तो मैंने ये किया कि मैंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के प्रोसेस को अच्छे से समझ लिया और हर प्रोसेस का डेफिनेशन और एग्जाम्पल अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लिया। मैंने की टर्म के साथ अपने आंसर्स को एनरिच करने का ट्राई किया, जिस कारण मेरा HRM हो पाया। वैसे एग्ज़ाम में भी मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि जहाँ तक हो सके मुझे HRM कम अटैम्प्ट करना है। तो अपार्ट फ्रॉम कंपलसरी क्वेश्चन, मैंने ट्राई किया कि मैं ऐसा ब्लॉक चूज़ करूँ जिसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्वेश्चन कम हो। लास्टली मेरे को एक और चीज़ बतानी है अबाउट नोट मेकिंग। ये क्योंकि कॉमर्स हमारा बहुत ही वास्ट ऑप्शनल है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एग्ज़ाम के पहले आपके पास एक ऐसा मटेरियल हो जो आप प्रीलिम्स के बाद और मेंस के पहले बहुत बार रिवाइज़ कर पाएँ। तो ये मटेरियल आपका प्रीलिम्स तक रेडी हो जाना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जब स्टार्ट कर रहे हैं 1 साल पहले अपना प्रिपरेशन, तो जब आप वो नोट्स जो बना रहे हैं वो काफ़ी लॉन्ग होगी, लेकिन उस लॉन्ग नोट से आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं और उसमें डेफिनेशन, थिंकर्स के नाम, डायग्राम, अगर पेपर 1 का थियोरी है तो उसमें इलस्ट्रेशंस, ये सब ज़रूर डालें अपने शॉर्ट नोट्स में भी, क्योंकि इससे रिटेन करना बहुत ईजी हो जाता है। और जैसे मैंने जो फॉलो किया था, मैंने सोचा था कि 2 स्पाइरल बनाऊंगी फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 रिस्पेक्टिवली। सो इन 1 स्पाइरल आई डिमार्केटेड नंबर ऑफ पेजेस हर एक टॉपिक के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ऑडिट के लिए आई understood that I don't need more than 10 pages, 10 sides, 5 pages. Similarly, for direct tax, not more than 50 pages, 50 sides. तो accordingly, you also allocate number of pages for each and every topic, ताकि आपका 200-250 पेजेस में पेपर 1 पूरा कंप्लीट हो जाए। सिमिलरली आपका 200-250 पेजेस में पेपर 2 भी पूरा कंप्लीट हो जाए। तो जब आपके पास 2 बुक ये रेडी हो जाएगी प्री तक, तो फिर आप प्रीलिम्स के बाद इसको बहुत बार पढ़ पाएंगे और आपका एग्ज़ाम में आपको रिकॉल करने में बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। लास्टली मैं आप सबको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगी। प्रिपेयर वेल एंड आई होप आपको मेरी टिप्स से फ़ायदा हो। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पद्मिनी नारायण सहरावत है एंड यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 में 152 रैंक आई है। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स देखे एंड उन्हें बहुत अच्छे से एनालाइज़ किया कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट्स में से आ रहे हैं, उनका क्या क्या वेटेज है और क्या ऑप्शंस पूछते हैं, किस टाइप के शॉर्ट नोट्स आते हैं जो कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे आ रहे हैं,
तो मैंने ये पूरा अच्छे से एनालाइज करके सब्जेक्ट वाइज मार्किंग पैटर्न पिछले 5-6 ईयर्स के पेपर्स का बनाया था एक चार्ट, जिसमें मैंने लिखा था कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में से इतने मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इतने शॉर्ट नोट्स आ रहे हैं, एंड ऑप्शंस में कौन कौन से एरियाज हाईलाइट हो रहे हैं। तो इससे हमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है और फिर हम उस हिसाब से अपने पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मैंने वेटेज वाइज सब्जेक्ट्स उठाया। जैसे मैंने बताया फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 100 to 150 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर 1 में आउट ऑफ 250। तो सबसे पहले मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया। फिर मुझे ऑडिट कंफर्टेबल लगता है सब्जेक्ट, तो मैंने ऑडिट को फटाफट ख़त्म कर लिया। ऑडिट में से एक क्वेश्चन आ ही जाता है एज अ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन किसी और सब्जेक्ट के क्वेश्चन के साथ, और या फिर शॉर्ट नोट आ जाता है, तो मैंने ऑडिट को फिनिश किया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए क्योंकि मैंने आरबीआई और सेबी का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था, एमबीए में भी थोड़ा पढ़ा हुआ था, और करंट अफेयर्स में काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं जो हम इकॉनमी का करंट अफेयर्स करते हैं GS3 के लिए। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मैंने वहाँ से अच्छे से कवर कर लिया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मुझे थोड़ा टाइम लगा करने के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग MBA में जिस तरह से कराते हैं वो एक एनालिसिस लेवल का अकाउंटिंग होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, ना कि आप पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो अकाउंट्स। जबकि UPSC के सिलेबस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए, उनके एप्लीकेशन पता होने चाहिए। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंने फिर इन डेप्थ किया था कोचिंग के टाइम पे, और फिर मैंने वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और जो मटेरियल मैंने प्रिपेयर किया हुआ था उसी से रिवाइज़ किया। कॉस्ट अकाउंटिंग मुझे काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट लगता था, तो कोचिंग के टाइम पे भी जब मैंने किया था तो मुझे बहुत इजी लगा, तो उसको मैंने जल्दी जल्दी उसके न्यूमेरिकल्स सब कुछ रिवाइज़ कर लिया। एंड जो क्लासेस में मैंने नोट्स बनाए थे RS अग्रवाल सर की क्लासेस अटेंड करके, उनको मैंने रिवाइज़ कर लिया अच्छे से। टैक्सेशन के लिए मैंने RS अग्रवाल सर की क्लासेस में जो उन्होंने फैकल्टी अरेंज किए थे उनसे सारे टैक्सेशन सीखा था, काफ़ी अच्छे से उन्होंने पढ़ाया था बेसिक्स। तो टैक्सेशन में है कि आपको बार बार याद करना होता है, सारे क्लॉजेज और रूल्स याद करने होते हैं, तो वो मल्टीपल रिविजन से ही हो सकता है टैक्सेशन। और अगर आप एग्ज़ाम के पहले रिवाइज़ नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ आप भूल जाओगे। तो टैक्सेशन के लिए और कोई रास्ता नहीं है, आपको बार बार रिवाइज़ करके ही, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करके ही वो सब्जेक्ट पे मास्टरी आएगी। फिर पेपर 2 में ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ये 4 सब्जेक्ट्स थे। इसमें भी मैंने वेटेज वाइज ही किया। IR का इतना ज़्यादा वेटेज नहीं होता है सेक्शन B में, HRM का होता है, तो मैंने HRM पे ज़्यादा फोकस किया। पर क्योंकि पेपर 2 में जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो किसी भी एरिया से आ सकते हैं, तो आपको पूरे सब्जेक्ट की एक रीडिंग करनी चाहिए अच्छे से। उसके अलावा मेरी जो आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी थी उसमें मैंने फ्लो चार्ट्स इंक्लूड करने की कोशिश की, डायग्राम्स इंक्लूड करने की कोशिश की, हब एंड स्पोक डायग्राम्स डाले, और मेनली मैंने ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस किया कि मैं एग्जांपल्स दे सकूं और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अच्छे से लिख सकूं इसमें। और अगेन मेरी ऑप्शनल के पेपर 2 में आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी में, जैसे अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10 पॉइंट्स लिख सकूँ, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 15 पॉइंट्स लिख सकूँ, ये स्ट्रैटेजी थी। इसमें पॉइंट्स मैंने जनरेट किए कि किसी भी चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख दिए, उनका करंट सिनेरियो में क्या रेलेवेंस है ऑर्गेनाइजेशंस में वो लिख दिया, कोई केस स्टडी है अगर इंडियन कंपनीज़ की या फॉरेन कंपनीज़ की तो वो लिख दिया। तो ऐसे मैंने अपने ऑप्शनल 2 के आंसर राइटिंग पे फोकस किया था। ऑप्शनल 2 में बेसिक मटेरियल है, थ्योरी वही रहती है, सबको पता होता है कि यही मॉडल्स हैं, यही आपके थ्योरी है। तो आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, एक आप प्रेजेंटेशन में डायग्राम्स इंक्लूड करके, दूसरा आप एग्जांपल्स इंक्लूड कर सकते हो, और तीसरा आप क्या क्या डायमेंशंस इंक्लूड करते हो अपने क्वेश्चन में। पर एक चीज़ जो मैंने की, मैंने अपने आंसर्स को बहुत ही टू द पॉइंट रखा था कि जो पूछा है उसी हिसाब से मुझे आंसर करना है, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप एक्स्ट्रा चीज़ें इंक्लूड करके और फिर पेपर फिनिश कर पाओ। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना पेपर कंप्लीट कर पाओ, इसलिए टू द पॉइंट आंसर्स रखे थे मैंने रिसोर्सेज के लिए सिर्फ रैंकर्स मटेरियल रेफ़र किया था। RS अग्रवाल सर ने जो नोट्स दिए थे वो काफ़ी टू द पॉइंट, कंसाइज और कॉम्प्रहेंसिव थे।
उनके नोट्स में एक स्पेशल चीज़ ये रहती है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ट्रिपल टिक मार्क करते हैं, उससे कम इम्पॉर्टेंट को डबल टिक मार्क, जो ऐसे नॉर्मल टॉपिक्स होते हैं उन्हें सिंगल टिक मार्क करते हैं। तो आप उसको देखते हुए अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हो। प्लस उनका फोकस होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हैं उस हिसाब से हमें क्लास में अच्छे से पढ़ाना। तो उससे एक हमें प्रैक्टिस होती रहती है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऐसे आए थे और माइंड भी उसी हिसाब से फिर ओरिएंट हो जाता है हमारा। तो रैंकर्स मटेरियल मैंने सिर्फ प्रेफर किया था। प्लस मैं वर्किंग प्रोफेशनल थी उस टाइम पे, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं एक्स्ट्रा बुक्स को रेफ़र कर सकूं। पर कुछ टॉपिक्स के लिए मैंने जैसे ऑप्शनल पेपर आने हैं तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स जो मुझे नहीं समझ में आते थे उसके लिए मैंने सीए का मटेरियल रेफ़र किया था। जो बेसिक सीए का मटेरियल होता है वो ऑनलाइन अवेलेबल होता है, तो ताकि मुझे बेसिक्स जो है अकाउंटिंग के जो कि बीकॉम ऑनर्स में या फिर सीए में सिखाते हैं वो मुझे आराम से आ सकें। तो मटेरियल के लिए सिर्फ रैंकर्स नोट्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स और करंट अफेयर्स के लिए हिंदू में आता था एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ का पेज आता है, उसके अंदर अच्छे अच्छे कोटेशंस होते हैं, बिजनेस ओरिएंटेड कोटेशंस होते हैं, कुछ केस स्टडीज़ होती हैं, तो वहाँ से थोड़ा बहुत देख लिया था करंट अफेयर्स। बस इतना मेरा रिसोर्स बेस था। ऑल द बेस्ट। Hello everyone, my name is Shreyansh Surana. I secured rank 269 in the CSE 2020 examination. In my case, I had CA, that is Chartered Accountancy, as my background. तो ऐसा होता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के सेम होते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट्स नहीं लगा था क्योंकि सब्जेक्ट्स कॉमन थे और प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग था काफ़ी, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगा। बट आई विल टेल यू हाउ टू गो अबाउट इट। सिंस द सिलेबस ऑफ इफ़ यू आर ऑलरेडी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और यू हैव स्टडीड बीकॉम और सम अदर कॉमर्स बैकग्राउंड, देन आपने पहले से काफ़ी कुछ पढ़ रखा होगा, बट हमें यहाँ पे स्ट्रीमलाइंड स्टडीज़ चाहिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ऑप्शनल पढ़ने के साथ साथ जीएस के भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो कॉमर्स को हमको डेडिकेटेडली फोकस देना तो है, बट कितना देना है ये हमें डिसाइड करना है, क्योंकि मटेरियल बहुत सारा है, सिलेबस काफ़ी वास्ट है, तो उसको स्ट्रीमलाइंड वे में कैसे प्रिपेयर करना है। तो अगर पेपर 1 की जहाँ तक की बात है तो आप किसी भी एक सोर्स को उठा लीजिए। मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि ICAI, दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उनके मॉड्यूल लो और बहुत सारे प्रैक्टिकल सॉल्व करो, हमें ये नहीं करना है। द बेस्ट अप्रोच इज़ टू पिक अप द प्रीवियस ईयर पेपर्स। आप पास्ट ईयर के पेपर्स उठाइए, उसको एनालाइज़ करिए कि किस पोर्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उसमें ये भी देखिए कि प्रैक्टिकल कहाँ से आ रहा है, थियोरी कहाँ से आ रही है। क्योंकि अराउंड 10 से 12 क्वेश्चंस होते हैं जो शॉर्ट नोट बेस्ड होते हैं, जो बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं और बहुत मार्क्स फैचिंग चीज़ें हैं वो चीज़। तो आप देख लीजिए कि प्रैक्टिकल्स कौन से सब्जेक्ट से आ रहे हैं, कौन से चैप्टर से आ रहे हैं, और थियोरी कौन से सब्जेक्ट से आ रही है, कौन से टॉपिक से आ रही है। तो इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि आपके जो प्रिपरेशन है वो डेविएट नहीं होगी कि किस वे में पढ़ना है, किस डायरेक्शन में पढ़ना है। दूसरा ये कि आप सिर्फ रिलेवेंट चीज़ें पढ़ेंगे। तो एक और चीज़ बता देता हूँ मैं प्रैक्टिकल्स के केस में, कि हमारी कई बार आदत होती है कि जो प्रैक्टिकल्स में हम जैसे लेजर्स बना रहे हैं, जनरल बना रहे हैं, तो फटाफट पेन से लाइन खींचे, या मैनी टाइम्स हम इवन लाइन भी नहीं खींचते, फटाफट से चालू कर देते हैं। बट हियर इन द UPSC एग्जामिनेशन, इफ़ यू विल ड्रॉ द प्रॉपर फॉर्मेट्स विथ ऑल द पर्टिकुलर्स, अमाउंट, रुपीज़ एंड ऑल, सो इट गिव्स यू अ कंप्लीटनेस इन द आंसर्स। तो चेक करने वाले को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द कंपटीशन ना, कि बहुत सारे लोग पेपर दिख रहे हैं और हमारी कॉपी सबसे अलग होनी चाहिए और सबसे कंप्लीट होनी चाहिए। तो प्रैक्टिकल्स में आई वुड सजेस्ट कि आप प्रैक्टिस करिए, टेबल बना के, प्रॉपर फॉर्मेट बना के सॉल्व करने की चीज़ों को। उसके अलावा प्रैक्टिकल्स में मैं एक और चीज़ आपको बोलूँगा कि आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऐसा पाएंगे कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं कई बार। तो हो सकता है आपने कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा, उसी में से आ गया हो, तो बहुत हेल्प हो जाती है इस केस में एग्ज़ाम में। द सेकंड थिंग इज़ अबाउट द टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि प्रैक्टिकल्स ऐसा है जहाँ पे हो सकता है आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है, बैलेंस शीट बनाई, बट आपको रियलाइज़ हो रहा है कि बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है। होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि कुछ एक्स्ट्रा टाइम हाथ में लेते हुए चलना है प्रैक्टिकल्स में स्पेशली, क्योंकि थियोरी तो ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, बट प्रैक्टिकल्स में आप थोड़ा थोड़ा टाइम बचाते हुए चलिए, क्योंकि हो सकता है 1-2 क्वेश्चन में डिफ़िकल्टीज आ जाए या कहीं पे आप अटक जाएँ, तो वो कवर अप हो जाएगा जो आप टाइम बचा रहे हैं उससे। ओके, अब पेपर 1 की थियोरी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। पेपर 1 में थियोरी पे इक्वल अटेंशन देना है और कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि पेपर 2
में सिर्फ ज़्यादा रटने का काम है, बट पेपर 1 में अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। तो पेपर 1 में यू शुड बी थरो विद दी थ्योरी एज वेल एज़ दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। आप पास्ट ईयर के पेपर्स उठा लीजिए, उसमें शॉर्ट नोट्स आते हैं, उसको अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार रिपीट हो रहे हैं शॉर्ट नोट्स। तो इसमें में आपका थ्योरी कवर हो जाएगा। आई वुड सजेस्ट कि आप आपके नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स, क्योंकि बुक्स में काफ़ी सारा कंटेंट है, वो हो सकता है पढ़ नहीं पाओ। तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, उसको कंटिन्यूसली रिवाइज़ कर लिए। अगर ठीक से आपको चीज़ें याद रहेगी तो वहाँ पे रिप्रोड्यूस करने में उतना ही ईजी हो जाएगा। हाँ, एक और चीज़ मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहना चाहूँगा आपसे कि जैसा आपने कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व किया, से रेशियोज़ का क्वेश्चन है या फिर फाइनेंशियल एनालिसिस का क्वेश्चन है, तो जैसे ही आपने सॉल्व किया उसके नीचे आपको 2 से 3 लाइन में कमेंट दे देना है कि जो भी हमने सॉल्व किया उसका कंक्लूजन क्या है। से फॉर एग्जांपल आपका आया कि करंट रेशियो इज़ इक्वल टू 2, सो व्हाट डज़ इट सिग्निफाई, कि हमारे करंट एसेट्स कितने हैं, करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है। तो ऑल्दो ये नहीं लिखने से आपके हो सकता है मार्क्स ना कटे, लेकिन आई एम श्योर कि अगर आप ये लिखेंगे तो एग्जामिनर पे काफ़ी अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा और यू विल डेफिनेटली गेन 1 और 2 एक्स्ट्रा मार्क्स। एंड सी, अगर आप हर 10 क्वेश्चन में ऐसा कर रहे हैं तो 10 क्वेश्चन इंटू 10 मार्क्स, तो ऐसे ही आपको 10 नंबर का एज मिल गया। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा पेपर 2 की हम बात कर लेते हैं पेपर 1 के बाद में। पेपर 2 मोस्टली थ्योरी है, मोस्टली या फिर ऑलमोस्ट थ्योरी है, जैसे कि अपना ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशंस हो गया। तो इसमें सबसे पहली तो बात ये आती है कि सोर्सेज कौन से यूज़ करने हैं, क्योंकि यहाँ भी मटेरियल बहुत सारा अवेलेबल है, बहुत सारी रेफरेंस मटेरियल्स हैं, बड़ी बड़ी बुक्स आपको मार्केट में मिल जाएगी, इवन हर एक चैप्टर के ऊपर आपको एक बुक मिल जाएगी। क्योंकि पेपर 2 ऐसा सब्जेक्ट है जो जनरली MBA वाले स्टूडेंट्स या मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं, इसलिए मटेरियल काफ़ी अवेलेबल है। बट अगेन, जैसा मैंने आपको पेपर 1 में बताया था कि अपन को प्रिपरेशन काफ़ी स्ट्रीमलाइन रखनी है और टू द पॉइंट रखनी है। 3 चीज़ें मैं बोलूँगा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है पेपर 2 के आंसर्स लिखते समय। सबसे पहला तो ये कि टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए आपका, क्योंकि पूछा कुछ और है, आप उसको घुमा रहे हो जस्ट बिकॉज आपको पढ़ने भरना है, तो दिस विल नॉट वर्क, बिकॉज पीपल आर रियली वर्किंग हार्ड इन कॉमर्स एंड यू नीड टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमंग्स देम। सो काफ़ी क्रिस्प आंसर होनी चाहिए आपकी। सेकेंड मैं बोलूँगा कि आपको इनोवेटिवनेस लानी पड़ेगी आंसर के स्ट्रक्चर में। सिर्फ यहाँ पे इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन से काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ आपको इनोवेटिवनेस आपकी दिखानी पड़ेगी। मैं ये नहीं बताऊँगा किस वे में करना है, आप अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई करिए, टेस्ट सीरीज लिखिए, आपको समझ में आएगा कि काफ़ी स्कोप है इसमें कॉमर्स के पेपर 2 में इनोवेशन का। फिर थर्ड थिंग मैं बोलूँगा वैल्यू एडिशन का, क्योंकि थियरी एक ऐसा चीज़ है काफ़ी मोनोटोनस है, हमारे लिए मोनोटोनस है, तो आप उसके बारे में सोचिए जो हमारी कॉपीज़ चेक कर रहा है, उससे दिन में से 10 कॉपीज़ चेक करनी है, हर कॉपी में उसको सेम आंसर मिल रहा है, तो वी नीड टू डू समथिंग डिफरेंट कि उसको इंटरेस्ट आए पढ़ने वाले को। मैं खुद भी अगर एक चीज़ 2 बार पढ़ लेता हूँ तो मेरे को बोर होने लग जाता है, अरे क्या पढ़ रहा हूँ मैं, है ना, आपके साथ भी होता होगा। तो हमें क्या करना है कि आंसर को इंटरेस्टिंग बनाना है। अब आंसर इंटरेस्टिंग कैसे बनेगा, इसके काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं फ्लो चार्ट्स यूज़ करता था, डायग्राम्स यूज़ करता था, केस स्टडीज़ यूज़ करता था, तो ये आप लोग भी कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल है और आई वुड से कि इट विल डेफिनेटली गिव यू एन एज ओवर दी अदर्स इन दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज अगेन मैं बोल रहा हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपको कुछ डिफरेंट करना है। से फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की किसी पर्टिकुलर थियरी के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो मैक्स टू मैक्स हमें याद रहता है कि इस थियरी का थिंकर कौन है, इसमें एक्सप्लेनेशंस क्या है, इसके पॉइंट्स क्या है, तो ये बेसिक मिनिमम है, ये सबको लिखना है, सब लोग लिख रहे हैं। तो ये 2 से 3 नंबर जो हमें एक्स्ट्रा चाहिए उसके लिए क्या करना होगा, अपने थियरी लिख दिए, उसके पॉइंट्स लिख दिए, बट अभी भी उसमें इनोवेशन का स्कोप है। कैसे, से फॉर एग्जांपल आपको स्टाफिंग के ऊपर आंसर लिख रहे हैं, तो छोटे से फ्लो चार्ट में विद इन 1 मिनट आपको एक फ्लो चार्ट बना देना कि स्टाफिंग की प्रोसेस क्या है, या फिर उसमें कुछ पर्टिकुलर आप थियरी एक्सप्लेन कर रहे हैं, मॉडल एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसको फ्लो चार्ट की मदद से एक्सप्लेन कीजिए। फिर इसके बाद एक बात आती है एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज़ की। से फॉर एग्जांपल अगर मर्जर एंड एक्विजिशन पे क्वेश्चन आ रहा है, तो ये कैनॉट राइट देयर कि हीरो होंडा का एग्जांपल या फिर टाटा या जगवार का एग्जांपल, ऑल्दो दे आर डेफिनेटली करेक्ट, बट वाई आई एम सेइंग कि आपको वो सब नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेली बेसिस पे मर्जर हो रहे हैं, डेली बेसिस पे एक्विजिशन हो रहे हैं, बायजूस का हो रहा है, आकाश का हो रहा है, अलग अलग एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। तो अगर आप वही मोनोटोनस चीज़ें लिखेंगे तो हो सकता है उतनी अट्रैक्टिव ना लगे, बट अगर आप अपने करंट सराउंडिंग्स को लेकर के एग्जाम्पल लिख रहे हैं तो इट विल मेक एन डिफरेंट इम्पैक्ट। कि एग्जामिनर को लगेगा हाँ यार ये बंदा अवेयर है, इसके नॉलेज की डेप्थ नॉलेज है, एंड ही सीज द थिंग इन अ डिफरेंट वे। तो आपको ये कुछ छोटे छोटे इनोवेशन से ये करनी है। प्लस इसके अलावा थियोरी वाले पेपर में एक होता है टाइम मैनेजमेंट वाला चीज़।
तो लेट मी टेल यू कि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी इज़ अ पेपर जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप अगर प्रॉपरली इसको स्ट्रेटेजिक वे में सॉल्व करेंगे तो क्योंकि इसमें हमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस लिमिटेड पता है कितने आने वाले हैं, किसमें कितना लिखना है, काफ़ी स्टैटिक चीज़ें हैं ये ना। तो अगर आप 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर भी लगा लेते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितने टाइम में कौन से क्वेश्चन ख़त्म हो जाना चाहिए और कितने टाइम पे कौन सा आंसर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इस वे में आप 1-2 पेपर लिख लिए और टाइम डिसाइड कर लीजिए कि इतने टाइम में इतना हमको ख़त्म करना है। तो ये तो बात हो गई पेपर 2 की। इसके अलावा अगर मेरे को कुछ आगे याद आता है तो मैं ऐड करते जाऊँगा। और फिर अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे, जो कि जनरल स्ट्रेटजी की पेपर को कैसे अप्रोच करना है। मेन इशू मैंने कई लोगों से सुना है, कुछ लोगों ने डिस्कस भी किया है कि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का पेपर ख़त्म नहीं हो रहा है। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, हम 1-2 क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है हमको, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन हमारा छूटा तो आप समझ लीजिए कि आप रेस में बाहर तो नहीं बोलूँगा बट काफ़ी पीछे हो चुके हैं। तो पेपर कंप्लीट करना इज़ अ मस्ट, स्पेशली दी ऑप्शनल का पेपर। ऑप्शनल का पेपर इज़ अ डिसाइडिंग फैक्टर एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर इन दी मेंस एग्जामिनेशन। जीएस आपको श्योरली मार्क्स देगा, बट अगर आप टॉपर्स की या किसी की भी मार्कशीट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा आपको उसमें। बट ऑप्शनल इज़ अ थिंग जो आपको एज देगा बाकी लोगों के कंपेयर में। और प्लस एक और बेनिफिट आपके पास ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल हैव देयर बैकग्राउंड एज अ कॉमर्स, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ इंक्रीमेंटल एफर्ट्स चाहिए। और इंक्रीमेंटल भी मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ी सी क्रिएटिविटी चाहिए और आंसर लिखने का तरीका सीखना है। नॉलेज आपके पास है, नो डाउट आपके पास नॉलेज है, आपको सिर्फ उसको प्रेजेंट करने का तरीका सीखना है, ठीक है। अच्छा, मैं स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहा था कि एक पेपर में 8 क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, ठीक है। उसमें से 8 में से हमें 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और उन 5 में से भी 2 क्वेश्चन होते हैं वो कंपलसरी नेचर के होते हैं। और ये जो 8 क्वेश्चन हैं वो डिवाइडेड होते हैं 2 पार्ट्स में। सो आई थिंक दिस वाज ऑल फॉर आवर टुडेज सेशन। ओके, बाय बाय, गुड लक, ऑल द बेस्ट। My name is Priyank Kishore. I secured rank 274 in UPSC Civil Services Exam 2018. I also appeared in Civil Services Mains 2019 exam. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पोर्शन के बारे में अगर हम बात करें कॉमर्स पेपर 1 के सेक्शन बी का जो आता है, इसमें फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस एफएमआई वाला जो पोर्शन था वो उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे। आई वुड से एटलीस्ट 80-100 मार्क्स ऑफ द पेपर वॉज फ्रॉम एफएमआई पेपर, विच इज़ ईजी बिकॉज दिस इज़ द ओनली पोर्शन ऑफ द कॉमर्स सिलेबस जहाँ की जीएस का ओवरलैप है। तो जो भी क्वेश्चंस एफएमआई से थे वो काफ़ी ईजी थे, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स के क्वेश्चंस थे और एनबीएफसी पे क्वेश्चन था। तो आई वुड से सेक्शन बी काफ़ी इजी थी। और सेक्शन ए भी अगर हम बात करें, जो 10 मार्कर्स जो कंपलसरी 10 मार्कर्स होते हैं, उसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो कि एस्पिरेंट्स को पता नहीं था। कोई भी एस्पिरेंट अगर कॉमर्स की अच्छी तैयारी कर रहा है तो सारे के सारे 10 मार्कर्स डुएबल थे। और न्यूमेरिकल्स भी जो भी पूछे गए थे, चाहे वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का हो या ग्रॉस टोटल इनकम का हो या कि कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन हो, सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे न्यूमेरिकल्स, और थ्योरी भी काफ़ी इजी था। तो ऑन द होल मैं कहूँगा कि ऑप्शनल पेपर 1 ना तो काफ़ी लेंदी था और ना ही काफ़ी डिफ़िकल्ट था। इसमें एस्पिरेंट्स, फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए एडवाइस होगा कि वो रैंकर्स के जितने भी नोट्स हैं, जो कि कॉमर्स ऑप्शनल के लिए अब एक बाइबल जैसा हो गया है, उसको अच्छे से अगर थरोली कवर टू कवर पढ़ रहे हैं तो उसके बाहर जाने की अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली फाइनेंशियल मार्केट्स, जो कि एक निगलेक्टेड एरिया है कॉमर्स ऑप्शनल पेपर 1 का, मेरे हिसाब से ये काफ़ी हाई यील्ड सेक्शन है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन हम ऑलरेडी जीएस प्रिपरेशन के थ्रू कर चुके होते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस वाला पोर्शन अगर आप अच्छे ढंग से करें तो इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। अनदर एडवाइस इस साल के पेपर के बाद ये है कि आप सेक्शन बी एफएम और एफएमआई जिसमें पूछा जाता है, इसकी आप तैयारी अच्छे से करें और 3 क्वेश्चन आउट ऑफ द 5 क्वेश्चंस आप इसी सेक्शन से करें, क्योंकि सेक्शन 1 में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस और काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल अकाउंट्स, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। बट जो सेक्शन बी है उसमें आपको बस फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एफएमआई, यही 2 चीज़ें कवर करनी है। और एफएमआई के क्वेश्चंस कंसिडरिंग दिस ईयर के जो क्वेश्चंस थे, मेरे हिसाब से आपको सेक्शन बी पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो ये तो बात रही कॉमर्स ऑप्शनल पेपर 1 की। कॉमर्स ऑप्शनल पेपर 2 भी एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं था।
कॉमर्स ऑप्शनल पेपर 2 में एस्पिरेंट्स को जो डिफिकल्टी होती है वो जो 10 मार्कर्स होते हैं, जो कंपलसरी आपको 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, वो कई बार ऐसे आ जाते हैं जिनमें से 2-3 क्वेश्चंस के आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता है। पिछले साल भी जैसे रेपोर्टरी ग्रिड था, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, बट इस साल अगेन 10 के 10 क्वेश्चन स्ट्रेट अवे अपने अगर आपने रैंकर्स मटेरियल या कोई भी स्टैंडर्ड रिसोर्स पढ़ा होगा, TN छाबरा या CB गुप्ता, इन किताबों से आपने अपने प्रिपरेशन की हो, तो इन 10 क्वेश्चंस को आप बहुत ही ईजिली आप आंसर कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द ऑप्शनल क्वेश्चंस। ऑप्शनल क्वेश्चंस में भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो कि करंट अफेयर्स बेस्ड था। आमतौर पर सेक्शन बी में, जिसमें HRM और इंडस्ट्रियल रिलेशंस पूछा जाता है, उसमें एक आध करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, बट इस साल करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं था और काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। नियो क्लासिकल थ्योरी पे एक क्वेश्चन थी, सिमिलरली इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे जो क्वेश्चंस थे या HRM पे जो क्वेश्चंस थे, वो आप अगर स्टैंडर्ड बुक से या स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल जैसे रैंकर्स मटेरियल है, इससे आप बहुत इजीली कंप्लीटली पूरा का 250 मार्क्स का पेपर आप अच्छे ढंग से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब दोनों पेपर अगर मैं एक बैलेंस्ड व्यू दूं तो दोनों पेपर नो डाउट दे वर ईजियर देन लास्ट ईयर एंड आई डोंट नो मार्किंग कैसी होगी, बट पेपर डिफ़िकल्टी लेवल तो ऑफ कोर्स इट वाज इजी। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर सबके सब बच्चे सिमिलर मटेरियल से पढ़ रहे हैं, रैंकर्स से या TN छाबड़ा से या CB गुप्ता से या RP रुस्तगी से, तो हाउ डू वी इंश्योर दैट आर आंसर स्टैंड आउट? इसके लिए एक थंब रूल है कि आप न्यूज़पेपर में जो करंट अफेयर्स चल रहा है या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो भी करंट अफेयर्स हैं, उसका आप यूज़ अपने आंसर्स में ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये ऑप्शनल पेपर 2 के लिए ये और भी ज़्यादा रेलिवेंट है। एक स्पेशल सेक्शन आता है HRD पे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे, हिंदू न्यूज़पेपर में हर एक वेडनेसडे को। आप अगर एक साल उस कॉलम को आप रिलीजियसली फॉलो करें तो आपको अपने कॉमर्स ऑप्शनल 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यू एडेड मटेरियल मिल जाएगा। और मेरी एडवाइस होगी कि आप थ्रू आउट द ईयर आप इस सेक्शन को फॉलो करते रहें और आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाएं और अपने आंसर्स में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। इसके अलावा टुवर्ड्स द एंड रैंकर्स क्लासेस के RS अग्रवाल सर आपको एक करंट अफेयर्स मॉड्यूल ईमेल करते हैं एग्ज़ाम से 20 डेज़ पहले। उनको भी आप अच्छे ढंग से पढ़ें और बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 में आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स मटेरियल से अपने स्टैटिक आंसर्स को सब्सटेंशिएट करें। मेरा समरी यही होगा कि ऑप्शनल इजी थी, बट आप अपने आंसर्स को यूनिक बनाने के लिए करंट अफेयर्स से आंसर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंशिएट करें। माई बेस्ट विशेस टू ऑल एस्पिरेंट्स। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव गर्ग है। मेरी सिविल सर्विसेज 2018 में 315 रैंक आई है। मेरा ऑप्शनल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हर इन पेपर्स को कैसे तैयार करना है। सबसे पहले आते हैं अकाउंटेंसी के ऊपर। अकाउंटेंसी के लिए सबसे बेसिक किताब जो आपको पढ़नी है वो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बाय J.R. मोंगा। वो बुक थ्योरी और प्रैक्टिकल अकाउंटेंसी दोनों ही तैयार करने में आपको पूरी तरीके से हेल्प करेगी। बहुत से क्वेश्चंस हैं जो कि डायरेक्टली बुक से आते हैं, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए J.R. मोंगा मेरे हिसाब से सबसे अच्छी किताब है। उसके बाद आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए मैंने CA फाइनल की प्रवीण शर्मा सर के नोट्स रेफ़र किए थे। वो नोट्स आप थॉरोली प्रिपेयर कर लीजिए। प्रैक्टिकल पार्ट आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। पिछले 15 साल से कोई सवाल नहीं आया प्रैक्टिकल का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। मोस्टली क्या आता है, 10 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट्स लिखने को आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर। तो वो शॉर्ट नोट्स आप तैयार करके रखिए, जो कि आप आए और आप एग्ज़ाम में एकदम फराटे से लिख दें। तो आपके लिए ये 2 चीज़ें अकाउंटिंग के लिए, J.R. मोंगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, BCom ऑनर्स सेकेंड ईयर के लिए, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बाय प्रवीण शर्मा CA फाइनल के आते हैं, उनके शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ये हो गया अकाउंटेंसी का। अब हम आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर। कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए मैंने किए थे रैंकर क्लासेस का मटेरियल जो आता है वो मैंने तैयार किया था। उसमें थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ तैयार हो जाता है लगभग। आपको फिर भी कुछ एक्स्ट्रा करना हो तो एक बुक आती है महेश्वरी मित्तल कॉस्ट अकाउंटिंग की, वो आप कर सकते हैं सिलेक्ट चैप्टर्स। उसमें से वो पूरी करने की ज़रूरत नहीं है, सिलेक्ट चैप्टर्स जो कि सिलेबस में दिए हुए हैं। उसके बाद आता है टैक्सेशन।
अब टैक्सेशन के दो पार्ट्स हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन यानी इनकम टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्सेशन यानी कि सर्विस टैक्स, वैट एक्सेट्रा। अब इनके लिए आपको अगर तैयार करना है तो सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स के लिए आपको उसके लिए करनी है सीए इंटर की गिरीश आहूजा की बुक आती है, वो आपको एकदम थॉरोली करनी होगी। जी हाँ, वो बुक आपको इनकम टैक्स का कोई भी सवाल आए आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं उस बुक के थ्रू। फिर है इनडायरेक्ट टैक्सेशन यानी सर्विस टैक्स, वैट एक्सेट्रा। देखिए, अब बहुत से स्टूडेंट्स के मन में विडंबना है कि सर्विस टैक्स क्या हमें तैयार करना है अब जबकि जीएसटी आ गया है कि नहीं। देखिए, मेरा ये कहना है कि कोर्स चेंज नहीं हुआ है, टैक्स चेंज हुआ है लेकिन कोर्स चेंज नहीं हुआ है, तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स पहले की तरह सर्विस टैक्स, वैट करना होगा। अब उसके लिए क्या करना है, वंस अगेन गिरीश आहूजा, उसके पीछे का जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का पार्ट दिया हुआ है वो मेरे हिसाब से काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसको आप आराम से अगर करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो मेंस के पेपर में आते हैं वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अनदर थिंग, इसमें आपको थ्योरी करनी है, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं करने इनडायरेक्ट टैक्सेस के, क्योंकि मोस्टली यूपीएससी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछती है आपसे। आपको वैट कैलकुलेट करने को या सर्विस टैक्स कैलकुलेट करने को आज तक ना पूछा है, और अब जबकि जीएसटी आ गया है तो फ्यूचर में भी कैलकुलेट करने को नहीं पूछेंगे मोस्ट प्रॉब्ली। नेक्स्ट आता है अब ऑडिट। ऑडिट के लिए सुरभि बंसल की सीए फाइनल की बुक जो आती है, मैंने सिर्फ वो की थी। उसके सिलेक्ट चैप्टर्स, बैंक ऑडिट, कॉर्पोरेट ऑडिट, फिस्कल ऑडिट, आप एनजीओज़ की ऑडिट, ये चीज़ आप करिए, मोर देन इनफ है उसके लिए। आप अगर एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं तो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स जो है बेसिकली वो आप देख सकते हैं, बस उनको देख लीजिए, फ्लिप थ्रू कर लीजिए। और जो बेसिक है, एटमैक्स क्या पूछ सकते हैं आपसे कि ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड्स का कॉम्पोजिशन क्या है, वो आप एक बार ग्लैंस थ्रू कर लेंगे तो आप आराम से उन सवालों को आंसर कर सकते हैं। उसके बाद आता है पार्ट बी ऑफ द सिलेबस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसके लिए थोड़ी सी एक्सटेंसिव प्रिपरेशन चाहिएगी। तो अगर बहुत लोग बहुत सोर्सेज रेफ़र करेंगे, बट अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो मैं आरपी रुस्तगी मैंने रेफ़र की थी और मुझे वो बुक बहुत हेल्पफुल लगी थी। सीए इंटर के लिए, बीकॉम ऑनर्स के लिए आरपी रुस्तगी का लेटेस्ट एडिशन आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो बुक आपको बहुत थॉरली करनी है। कई बार सवाल डायरेक्टली उठा के उस बुक से आ जाता है। आपको वो बुक अगर आपने कर ली, एंड दैट वो फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों के लिए काफ़ी है। देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज का सेगमेंट जो होता है उसमें से कई बार सवाल ऐसे आएंगे जो किसी को नहीं आते होंगे, बस ये फाइनल को आते होंगे, आप चाहे पीएचडी भी कर रखे होंगे तो भी आपको वो सवाल नहीं आते होंगे। लेकिन अगर आप ये बुक कर लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द इंटरमीडिएट सवाल जो होंगे, मॉडरेट डिफ़िकल्टी लेवल वाले सवाल आप आराम से आंसर कर सकते हैं, ईजी टू मॉडरेट डिफ़िकल्टी, और वही इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की ट्रिक है। एक्सटेंसिवली आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, शॉर्ट नोट्स, थ्योरी, वही एफएम में मार्क्स लाने का सबसे बढ़िया तरीका है। अब आते हैं पेपर 2 के ऊपर। पेपर 2 अपने आप में बहुत वास्ट है, इसके 4 कॉम्पोनेंट्स हैं एसेंशियली। पहला कॉम्पोनेंट ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, थर्ड कॉम्पोनेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फोर्थ कॉम्पोनेंट इंडस्ट्रियल रिलेशंस। अब मैं बताता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी कैसे पढ़ना है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी और बिहेवियर की बेसिक बुक है टी.एन. छाबड़ा। टी.एन. छाबड़ा अगर आपको वो बुक कवर टू कवर पढ़नी है और उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, लगभग 80% ऑफ द पेपर इसी बुक से आता है। आपने ये बुक अच्छे से कर रखी है, आपको 80% ऑफ द पेपर आता होगा। इसके बियॉन्ड आपको अगर तैयारी करनी है तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बुक आती है रॉबिन्स, वो आपको करनी होगी, और ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की बुक आती है स्टीफन रॉबिन्स की, वो आपको करनी है। लेकिन ये बुक आपको दोनों तब करनी है जब आपकी टी.एन. छाबड़ा एकदम अच्छे से हो गई है। ये बुक्स दोनों दे आर लाइक आइसिंग ऑन द केक। आपका केक अच्छा बना हुआ है, उसको और बेटर करने के लिए आप ये 2 बुक्स पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक आपका टी.एन. छाबड़ा ही रहना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसकी बेसिक बुक है सी.बी. गुप्ता। वो बुक मोर देन इनफ है एचआर प्रिपेयर करने के लिए। उसमें से सिलेक्ट चैप्टर्स भी नहीं करने, वो बुक आपको कवर टू कवर करनी है। वो थोड़ी सी मोटी है बुक, इट्स अ वेरी थिक बुक, बट यू हैव नो चॉइस, इट एक्चुअली कवर्स द एंटायर सिलेबस। आपको फिर भी अगर थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ करना है
मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ करने की, बट गैरी डासलर नाम की बुक आती है HR के लिए, बट आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी वंस यू हैव डन CB गुप्ता। लास्ट है टॉपिक बचता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का। इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए RS अग्रवाल सर का रैंकर क्लासेस का मटेरियल मेरे हिसाब से बेस्ट है। इट कवर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट इज़ टू बी कवर्ड इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि और आपको थोड़ा तैयारी करनी है तो आप TN छाबड़ा की इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बुक कर सकते हैं, और CB गुप्ता के ही पीछे इंडस्ट्रियल रिलेशंस का काफ़ी कुछ दिया हुआ है। बट पर्सनली मेरे ओपिनियन में इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए रैंकर क्लासेस का मटेरियल इज़ मोर देन इनफ। ये था कि सोर्सेज कैसे क्या क्या है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडिवर्स। I hope you all scored very well in commerce. Thank you. Hello folks, I am K. Lalit. I am 23 years old. I have done my graduation from Sri Ram College of Commerce, and I am currently pursuing my masters from Department of Commerce, Delhi School of Economics. I have secured rank 626 in Civil Services Examination 2018 this time, and my optional is Commerce and Accountancy. Scoring high in the commerce optional requires three things. Number 1, latest material. Number 2, previous year question coverage. And number 3, right practice of the answer writing. Our classroom course of commerce has all these three things. Hello, my name is C. Rahul Kumar. Come and join us. Now coming to Commerce and Accountancy specifically, I would say paper 1 is something that we do very elaborately in our graduation stage, and paper 2 is mainly theoretical. Some of the subjects we do in our graduation, and some of the papers like human resource management and industrial relations is something that we deal at the master's level. So for those even who have not done their masters per se and wish to take this examination, I think this is something that's very manageable given that we have good command in the subject. Taking coaching or not is a huge dilemma among various people. I would say that if we are good with the concepts and we can take test series on a regular basis and we have availability of study material, maybe we can go for the prior, but coaching becomes necessary when we need additional training, which I think I did because paper 2 is very important so far as answer writing goes. So what we do in our graduation or post graduation, that is academic strictly speaking, is different from what we do here. The stuff is the same, but the approach of answer writing becomes different. It's very significant that we write in a certain manner. I personally believe in the fact that instead of reading 10 sources, it's rather beneficial to read one source 10 times, and I applied the same to my optional as well. Surprisingly, I did not visit a lot of reference sources for my optional. I sticked to some major referred books. I stick to my graduation and post-graduation study material for my optional paper 1, and for paper 2, I went with Rankers classes coaching material as well as some additional readings. For instance, SP Robbins for organizational behavior and so on and so forth. I would say that taking test series is very important for optional because answer writing and its evaluation is where we exactly gauge our performance and we understand as to where we stand in the relative scheme of competition as a whole. So please do take tests, and I would recommend highly that if you could get your answer copies checked by experts instead of self-evaluation for optional papers at least, that would be beneficial. As I said that I am visually impaired, so many people suggested me not to go for this particular optional because one, it was technically challenging because I won't be writing my examination. Somebody else in the capacity of a writer or a scribe would be helping me out so far as putting down my answers on the script per se. So finding a writer was very difficult for me even after choosing the optional and studying for it. I was lucky enough that I had a set of good friends and good contacts
who helped me to get someone competent to write for me. Having said that, for visually impaired candidates who are watching me and who have a technical optional, I would say that practicing with your writer/scribe is very, very important. And even if we are very, very good at the concepts, and if we do not have adequate practice with our writers, the job is going to be tough, because ultimately it is the writer who is going to put the things on paper on our behalf. Having said that, I think a very smart strategy should be followed while we are preparing for optional, because it is very targeted indeed. So by smart, I mean a very specific, measurable, achievable, realistic and time-oriented strategy is necessary. I think in general circumstances, we should prepare for the optional before we start specific preparation for the preliminary examination, that is 3 months prior to the exam. And we should devote our 40 or 45 days of duration between the prelims exam and the prelims result solely for, or at least majoritarily for, optional paper, which will help us to manage time in a more efficient manner once the results are out and we are preparing for all the papers. For optional paper 1, I think practicing questions, that is through past year papers, is important for time management, because the answers need to be in a structured manner in a given space, and we do not have any space constraints in our academic papers. So that's a huge difference which I felt, because I'm pursuing my academics simultaneously with this examination. That's what I've been doing. I think for paper 2, what's important is memorization of concepts and interrelating them with current affairs. We have organizational behavior, organizational theory, human resource management and industrial relations for our optional paper 2. So interrelating the concepts among all these 4 domains and connecting them with current affairs is the key to success. I think paper 2 mein we need to focus on diagrams and pictorial representation, which is going to fetch us some extra marks in each question, which will ultimately make the difference. Thank you.